Whenever we discuss about electromagnetic spectrum, first thing that we need to keep in our mind is what it is. But उससे पहले I want you to keep few things in your mind. First कि electromagnetic waves जो होती हैं, they are transverse in nature. Second, they all move with speed of light, which is a fixed value 3 into 10 to the power 8 meters per second. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या. Scientists discovered that we are familiar with the visible spectrum, right? That is, white light is a mixture of seven colors. Whenever we pass it through a media, let's say prism, हाँ the white light split into its component color, and which are, जिसको हमने विबग्योर के अकॉर्डिंगली याद किया हुआ. On top we get red, and at bottom we get violet. So the scientists observed that A, there is a range of other waves beyond red and beyond violet as well. When they found out and studied about that, they found out that beyond violet we have ultraviolet, then X-ray, then gamma rays. And beyond red we have infrared, microwaves, and radio waves. So this whole range of waves is known as electromagnetic spectrum. स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है रेंज ऑफ वैल्यूज को कहते हैं. ठीक है, तो व्हाइट कलर्स को ये स्प्लिटिंग द फिनोमेना ऑफ splitting of white light is spectrum. ठीक है, तो वेबग्योर. अब आपको ये याद रखना है, there is a sentence which we need to memorize their position as well as which has the highest frequency, which has the lowest frequencies, which has a greater wavelength, which has a shorter wavelength. In order to remember all of this, we can take help from one of the sentence. What was that, Zainab? Rugby match is very unlike xylophone game. We're going to focus on the very first alphabets of all of it. Zainab is not in the class. I am. Then why didn't you answer? ये देख के बस रब्बी जितनी इल्मा याद आया, मुझे नहीं याद था. MashaAllah. Radio waves. M for micro. I for infra. इसको IR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. V visible. U ultraviolet, UV rays. X से X-ray एंड G से gamma rays. Gamma rays को ऐसे भी लिखते हैं. तो सर फिर वायर रेस क्या होता है? तो उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं. वही बता रहा था, gamma rays को ऐसे लिखते हैं, ऐसे वही करके ना. तो
So as we go from radio to gamma rays, the frequency would increase and वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? Decrease. Decrease. Because according to V is equals to F lambda, F is inversely proportional to wavelength. Since उनकी speed सबकी constant है, in vacuum, let's not forget, they would have the same speed in vacuum only. ठीक है? when the media changes और air में भी उनकी speed same होती है, जब उनका media change होता है, that is say into water or something like that, तो उनकी values decrease, उसके accordingly vary करती हैं. So as we move from radio to gamma rays, frequency increases and wavelength decreases. Okay? अब इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए कि कौन किस चीज में यूज होता है. आपको ये स्पेक्ट्रम एज इट इज याद करना है. तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, UV. एक्सरे एंड gamma ray. अच्छा जी, रेडियो के फर्स्ट यूज क्या माइंड में आ रहा है? क्या यूज होता होगा? कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए. माइक्रोवेव्स कुकिंग के लिए, Microwave के लिए. और हम इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. इंफ्रारेड रेज कहाँ पे यूज होते हैं? Heat. Remote ये heat night होती है. vision हाँ, ये इन हीट चीजों वेव्स में. होती हैं, तो नाइट विजन में यूज होता है. थर्मल सेंसर्स में यूज होती है. रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होती है. देन विजिबल कहाँ कहाँ यूज होगी? सर देखने के लिए। अदर देन दैट, Photographs. एनी सेंसिबल रीजनिंग? विजिबल सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में. दिस वुड बी आवर टॉपिक इन लाइट. सेकेंडली हम इसको कहेंगे विजुअल्स के लिए यूज करते हैं. यूवी रेस कहाँ पे यूज होती हैं? स्टेरिलाइजेशन में यूज हो Doctors, सकती हैं, hospitals, सनबेड्स में यूज हो सकती हैं. एक्सरेज कहाँ पे यूज होती हैं? स्कैनिंग में यूज होती हैं. मेडिकल यूज इसका होता है. यूवी स्क्रीनिंग के लिए भी यूज होती है ना? जी सर, स्क्रीनिंग के लिए होती है. जी. यूवी स्क्रीनिंग के लिए भी यूज हो सकती है. एंड गामा नॉर्मली मेडिकल, Radiotherapy. हाँ, रेडियोथेरेपी में कैंसर सेल्स को किल करती है, तो मेडिकल यूज होता है इसको, जिसका नाम रेडियोथेरेपी आता है. अब इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस होंगे दैट उन्होंने आपको स्पेक्ट्रम शो किया हुआ होगा, एंड इन द स्पेक्ट्रम दे वुड बी आस्किंग यू कि जी आइडेंटिफाई कि विच वेव इज मिसिंग, विच वेव हैज विच यूज, एंड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे. जी. Yes sir. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ है कि which one is not an electromagnetic wave, so we know that the sound is the only one which is not an electromagnetic wave. Nature of the waves that you have mentioned, तो sound क्या होती है हमारे पास? Longitudinal. Longitudinal. And the remaining names in the list are regions of electromagnetic, but one region is missing, so which one do you think is the missing one? Gamma. Gamma rays तो ये Yeah. रही.
गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी बताया भी था। यूवी यूवी नहीं मेंशन हमारे पास इसमें, यूवी, हाँ। ठीक है। अगेन स्टेट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज इन सिक्योरिटी चेक में कहाँ पे क्या यूज होता है? एक्सरे। रिमोट कंट्रोल्स में कौन यूज होता है? आईआर। एक्सरे को कैसे मेडिकल पर्पसेस में यूज करते हैं हम थ्योरी साइड लिख देंगे, वी हैव दैट इन आवर बुक एज वेल। के स्कैनिंग होती है हमारे पास, रेडियो शीट्स यूज होती हैं जिनके ऊपर जो डार्क रीजन्स होते हैं वो हमारे पास बोन्स को शो कर रहे होते हैं, जो लाइटर रीजन्स होते हैं वो फ्लैश को शो कर रहे होते हैं, एंड फिर वहां से हम ब्रोकन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ सर पे तो उसने रेडियो डायग्राम रेडियो वेव्स में उसने बोला, रेडियो वेव्स हमने बोला है किसकी होती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। अल्ट्रासाउंड किससे मूव करती हैं? नॉर्मल जो स्पीड ऑफ साउंड होती है। और एक्सरेज भी किससे मूव करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से, बिकॉज वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन रीजन है। फिर उसने पहला सवाल ये पूछा है कि स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? अभी अभी हमने किया कुछ सेकंड्स पहले। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? टाइम्स 10 पावर नेट 3 into 10 raised to power 8. State which of the component of electromagnetic spectrum has the lowest frequency? किसकी frequency lowest होती है? Spectrum is right in front of you. यूवी मैंने क्या बात की थी? फ्रॉम रेडियो टू गामा फ्रीक्वेंसी रेडियो। इंक्रीज होती है, तो लीस्ट किसकी होगी? रेडियो की। ओ हाँ क्या फिर टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर नॉट लिस्टेड। कौन सा लिस्ट नहीं है यहाँ पे हमारे पास? आई गेस आईआर मेंशन नहीं है एंड एक्सरे मेंशन नहीं है। अब जिसमें ये स्पेक्ट्रम है इसमें मिसिंग वेव्स है, हमें वो लिख देनी है, रीजन्स जो होंगे वो मेंशन आउट कर देना है। अब रेड लाइट जब एंटर करती है तो वो क्या करेगी, उसका स्ट्रेट पाथ क्या है ये, तो उसे थोड़ा सा बॉटम रिफ्लेक्ट करेगी एंड देन थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगी। ये ज्यादा ही मैंने नीचे कर दिया। रेड जो है वो लीस्ट रिफ्लेक्ट होती है, और अगर यहीं पे ग्रीन आ जाएगा तो ग्रीन उससे ज्यादा क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ही उसने ये बोला हुआ है। फिर उसने क्या